now we will study the French Revolution and the idea of nation state. Before we begin, you prepare with the pen and paper, and if you're done with your preparation, then we can begin. So, in the first lecture, we have studied about Frederic Suro, a French artist, and we have seen his painting, and we have studied also the idea of a French philosopher Ernest Renan and his idea of nation state. We have also studied that before this French Revolution, which broke out in 1789, there were absolute form of government in France and in Europe. And Frederic Suro's opinion about a new democratic and social republic, it was utopian, a vision of the society which is so ideal that unlikely to actually exist. And then we have understood the idea of nation state and what was Ernest Renan's view about that. And there was a question that was your homework to discuss this and summarize the attributes of a nation as Renan understands them. Why, in his view, are nations important? Now, in this lecture, we will study the French Revolution and the idea of nation. Now, before we begin, let us understand a few words from our glossary list. So, we studied about homage, enlightenment, charter, foreground, chartered, forged, restraint, no restraint, monarchical means only one master and only one law, repressive means controlling what people do by using force, forcefully control करना people को and their thoughts को. Plebiscite का मतलब है referendum, people in a country or in an area give their opinion on a political or social issue by means of voting. Then solidarity means an agreement between people of a group to support each other. Annexing means forcefully acquiring land or area without permission of the landowner. Descent, descent means related to a group of people who lived in the past. Sovereign means king or queen or the person who is in power. Sovereignty, supreme power to or authority to rule in a country. Peoples, here this word, look at this word peoples, it is used very often. Usually the word is people, P-E-O-P-L-E, people means janta, and it is singular as well as plural. People never used, it is never used as peoples unless it is describing a society. यहाँ पे peoples यूज़ किया हुआ है because there are other different nations, अमेरिका है, फ्रांस है, यूरोप के अदर नेशंस हैं, उनके जो लोग हैं उनको समझाने के लिए to represent people from different nations, this word peoples is used here. It's like fish, F-I-S-H, fish मतलब मछली, fish का plural भी fish होता है. However, fishes is also used जब different species का fish को हम specify करना चाहते हैं. So that is similar to it. Almanac is पंचांग होता है जहाँ पे देश के जहाँ पे बहुत सारे important dates के बारे में लिखा रहता है, मून के different phases के ऊपर depend करके different dates आते हैं, तिथि आती है, उनके बारे में लिखा रहता है. That is पंचांग. That is called in English almanac. Parliament is a group of elected people or politicians who make laws for their country. Martyrs, a person who suffer very much or are killed because of their religious or political views. Okay. Commemorated, to remind people of an important person or object from the past with a special action or objective. Revolutionaries, who want a political revolution, who believes in complete change in the society. Alright, so
now let's start our study. The French, the first clear expression of nationalism, the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged terrestrial terrestrial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. Who was the monarch at that time? The monarch was our Louis XVI. He became the monarch at the age of 20 only, and that is because of that privilege that they were enjoying at that time by birth. The privileges they were enjoying by birth. If you remember about that. The type of society at that time you already studied in class 9. Let us discuss those a little bit. There were three estates in the society. The first one was called clergy, second one was called nobility, third one was comprises of big businessmen, merchant, court officials, lawyers. All of them were educated educated persons, educated class, but they were the taxpayer of the country. It is clergy and nobility, noble persons. They were enjoying the benefit of not paying taxes. They were exempted from paying taxes, and this third estate people, they were the only taxpayer, and उनके टैक्स के पैसे से ही पूरे देश चलता था. So businessmen, merchant, court officials, lawyers, they were very prosperous part of the country. And after that, peasants and artisans. Artisans are those sculptors, technicians, then craftsmen, those mechanics जो हाथों से काम करते थे, those are called artisans, and small peasants, landless laborer and servants. So the society at that time was ruled by this absolutist government. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20-year-old and married to an Austrian princess, and upon his accession, the new king found an empty treasury. जो ट्रेजरी था, राजकोष था, देश के जो पैसा था वो बिल्कुल जीरो था, empty treasury. Why? Long years of war had drained the financial resources of France. बहुत साल से 7 साल से वॉर में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड जो एंगेज थे, वॉर जो था वो ब्रिटिश रूलर एंड अमेरिका को लिबर्टी देने का, फ्रीडम देने का जो वॉर था, दैट वाज लास्टेड फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स. एंड उस वॉर में फ्रांस भी शामिल थे, ग्रेट ब्रिटेन के साथ वॉर हो रहा था, एंड उसमें इनका जो ट्रेजरी था वो पूरे completely empty हो गया. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant के मतलब है जो ज़रूरत नहीं है, unnecessary extravagant court at the immense palace of Versailles or Versailles, you can call it Versailles. Versailles was the royal residence. It was a palace of Versailles. It was a royal residence of these clergymen, these monarchs. उनका royal residence था. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than $1 billion livres. Livres is a currency that is used in France. To a debt, DBT debt मतलब जो उधार हो गया, debt that had already risen to more than 2 billion livres. उसके पहले से ही जो था 2 billion livres का debt था, उसके ऊपर 1 billion और ऐड हो गया ये लुइस 16 के टाइम पे, because he helped American colonies to get independent from Britain.
नाउ द लेंडर्स, जो ये उधार दे दिए थे, लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, स्टेट यहाँ का स्टेट का मतलब है राष्ट्र, नेशन, इट्स नॉट लाइक स्टेट्स इन इंडिया, स्टेट्स मीन फुल नेशन, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, द बड़े 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 देश होते हैं वहाँ पे, उनको स्टेट्स कहते हैं, तो यहाँ पे भी वही है स्टेट क्रेडिट, जो स्टेट को मतलब फ्रांस को ये क्रेडिट दिया था, क्रेडिट का मतलब उधार दिया था। अब लेंडर्स दे बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, जो लोन दिया गया था उसमें 10% इंटरेस्ट मांगने लगे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. तो उनका जो बजट था वो इंक्रीज कर गया एंड वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी देना ज़रूरत पड़ गया। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, running the government offices or universities, the state was forced to increase taxes. Now here comes the cravings of the common people. टैक्स तो पे कर ही रहे थे, उसके ऊपर इंक्रीज टैक्सेस होने लग गए। अब क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करना है एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, क्या क्या होता है वो रेगुलर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटीज, ये सब के लिए जो एक्सेस टैक्सेस आप उनको इम्पोज करना था, किसको, ऑन द कॉमन पीपल ऑफ फ्रांस बाय दिस ruling monarchs, that is Louis XVI, who was the monarch at that time in France. He was the king of France at that time. So yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates. अब ये 3 estates के बारे में कहा जा रहा है, that is the part of the feudal system. feudal system में इसी को feudal system कहते हैं, जहाँ पे जो टोटल सोसाइटी है that is divided into 3 parts. That is, one part is clergy, second part is nobility, and third part comprises of this big businessmen, big merchants, and court officials, lawyers, peasants, and small peasants. Now that time is known as old regime. That time is known as old regime. All right. Now 90%, about 90% of the population, about 90% of the population was made up of these peasants. Peasants means farmers, peasants, and only a small number of them owned the land they cultivated. जिस land में वो cultivation का काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज उनके पास था। कम परसेंट इन ये जो 90% फेजेंट्स हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही कम परसेंट फेजेंट्स के पास अपना खुद का लैंड था, बाकियों के पास लैंड नहीं था। 60%, अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। जो सेकंड कैटेगरी है, रैंक के हिसाब से ये सोसाइटी का डिवीजन था। फर्स्ट रैंक था क्लर्जी, सेकंड रैंक था नोबिलिटी। सो वो नोबल पर्सन्स, उनके पास 60% लैंड था, एंड द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट के पास भी लैंड था। 60% लैंड टोटल इनके पास था। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंड क्लर्जी एंड nobility, that is clergy and nobility, enjoyed the certain privileges. क्या था वो privileges? क्या कुछ छूट था उनके? क्या था? privileges by birth, जन्म सिद्ध अधिकार के तौर पे वो लोग वो छूट लेते थे। the most important of these was exemption from paying taxes. वो लोग टैक्स बिल्कुल नहीं देते थे। जो टैक्स देते थे थर्ड रैंक के पीपल, उनके टैक्स से पूरा देश चलता था और सब लोग उसी पैसे को यूज़ करते थे, इंक्लूडिंग दिस क्लर्जी एंड nobilities. Nobles further enjoyed the feudal privileges. ये feudal privileges क्या है? feudal taxes. feudal taxes क्या होता है? These include feudal dues, जिसको manual dues भी कहते हैं, जो बेसिकली जो इनके जो लैंड थे इनके पास, ये जो 16% लैंड इनके पास थे, ये 16% लैंड, ये जो यहाँ पे 16% लैंड थे इनके पास, वो लैंड वो लैंड में देते थे
फेजेंट्स को, और फेजेंट्स उसमें कल्टीवेट करते थे और उनका जो कल्टीवेशन होता था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनको मिलता था, उसको उसका कुछ परसेंटेज ये लोग टैक्स के तौर पे रिसीव करते थे. इसके अलावा which they extracted from the pheasants. कैसे? Pheasants were obliged to render services to the lord. इसके अलावा कुछ सर्विसेज भी रेंडर करना होता था. They used to work in his house and fields. जो नोबल्स होते थे उनके घर पे भी काम करना पड़ता था. इसको कहते थे सर्फडम होता कहते हैं इसको, ACRF, सर्फडम. And pheasants were used to be treated as serfs. To serve in the army, to participate in building roads, इन सब में भी उनको काम करना पड़ता था. वो टैक्स भी देते थे और ऊपर से ये सब काम भी करते थे. There were two types of taxes at that time, the tithes and the tithe. Tithes were extracted by the church. It was 1/10 of the total. ये यहाँ पे tithe देखिए, tithe levied by the church comprising 1/10 of the agricultural product. जो agricultural product होता है उसका 1/10, एक 10 भाग का एक भाग जो है वो चर्च को देना पड़ता था. और टाइल जो होते हैं वो द टैक्स, डायरेक्ट टैक्स होता था जो इनको देना पड़ता था, क्लार्जी को देना पड़ता था, नोबल मैन को उनको देना पड़ता था. जो देश का डायरेक्ट टैक्स होता था, दैट इज कॉल्ड टाइल. जैसे हम टैक्स पे करते हैं वैसे ही वो लोग भी पे करते थे. A number of indirect taxes were also there, which were levied on articles of every consumption like salt, tobacco. इनके ऊपर भी टैक्सेस लगा रहता था. सॉल्ट जो सबको चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर टैक्स था. The burden of financial activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. तो थर्ड एस्टेट अकेला ही ये सारे बर्डन टैक्स का जो है वो उठाते थे. लिवरेज जो है वो यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस एट दैट टाइम, डिसकंटिन्यूड इन 1794. 1794 के बाद वो डिसकंटिन्यूड हो गया. क्लर्जी कौन है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन चार्ज. ऑलराइट, नाउ let us understand a few more things. Now the outbreak of revolution. क्यों revolution outbreak हुआ? Why the revolution happened over there? Actually ये जो एक्स्ट्रा टैक्स जो पे करना है, उसको जो टैक्स इम्पोज करना है, उनको लुइस 16 को एक्स्ट्रा टैक्स जो इम्पोज करना है, he could not impose that tax directly. He had to call upon a meeting with Estate General. Estate General was the public body to which the three estates sent their representative. ये जो three estates थे, clergy, nobility and the third estate, वो सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे जनरल एस्टेट में. अब जो मोनार्क है उनके साथ मीटिंग होता था और उसके बाद ये डिसीजन पास होता था. बट द मोनार्क हैड द प्रिविलेज टू कॉल अपॉन द मीटिंग एट एनी टाइम. तो उन्होंने on May 1789, Louis XVI called together an assembly of estate general to pass the proposal of new taxes. New tax का जो proposal है उसको pass कराने के लिए मीटिंग बुलाया गया. Louis XVI ने मीटिंग बुलाया on 5th May 1789. Now in that meeting, the first and the second estate sent 300 representatives of each. वो अपने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे. ये जो फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट है, सबका 300 टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव गए वहाँ पे मीटिंग में. द मीटिंग वाज कॉल्ड इन वर्साइल, द पैलेस ऑफ वर्साइल. वहाँ पे मीटिंग बुलाया गया. रिस्प्लेंडेंट, ये रिस्प्लेंडेंट वर्ड का मतलब है इट्स अ ब्यूटीफुल एंड वेरी गॉर्जियस. रिस्प्लेंडेंट. नाउ वहाँ पे 300 पार्टिसिपेंट्स गए, रिप्रेजेंटेटिव्स गए. किसके? क्लर्जी एंड नोबिलिटी के. बट द थर्ड स्टेट सेंट 600 मेंबर्स. मतलब इन दोनों का मिला के 600 था और थर्ड स्टेट खुद ही अकेला ही 600 मेंबर्स को भेजा वहाँ पे. क्यों? उसका रीज़न अभी समझ में आएगा. द थर्ड स्टेट हैड सेंट बैक so 600 members. The third estate was represented by its more prosperous and educated
मेंबर्स जो उनके बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे एंड प्रॉस्पेरस मेंबर्स थे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, उनको भेजा गया था वहाँ पे, लाइक लॉयर्स, बिग मर्चेंट्स, दे वर देयर as the representative of this third state. Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. वो लोग टैक्स पेयर थे लेकिन उनको एंट्री डिनाई कर दिया गया, वो लोग बाहर ही रहे थे वर्साइल के पैलेस के. However, their grievances, उनका जो दुख था, जो उनका जो जो भी उनका कहना था उनको, वो सब चीज़ें, डिमांड्स एंड ग्रीवेंसेस, जो उनका कंप्लेंट था एंड डिमांड्स था, वो सब 40,000 लेटर्स में 40,000 लेटर्स में लिखे गए थे और वो लेके गए थे ये 600 मर्चेंट्स, 600 मेंबर्स, दे आर रिप्रेजेंटेटिव विद देम, had brought with them, ठीक है, 600 representatives. Now voting in state general in the past had been conducted accordingly to the principle that each state had only one vote. Previously, मतलब पास्ट में ऐसा वोटिंग होता था कि ये जो सारे स्टेट थे वो उन सब के कितने भी रिप्रेजेंटेटिव चाहे वहाँ पे जाए, अटेंड करे वो मीटिंग, लेकिन एक एक वोट ही देना था. टोटल 3 वोट्स होंगे और उनमें से जो मेजोरिटी होंगे वो जीतेंगे. लेकिन इसमें तो ऑब्वियसली बात है, जो मोनार्क है उनके साथ वाले जो मेंबर्स है, क्लार्जी एंड नोबेल्टीज, वो दोनों सेम टाइप ऑफ डिसीजन देंगे तो वो ही मेजोरिटी होंगे, तो वो जीत जाएंगे. और जो थर्ड स्टेट है उनका जो भी डिमांड्स है, उनका जो भी ग्रीवेंसेस है, वो कभी पास होगा ही नहीं. लेकिन इस टाइम क्या हुआ, 300 करके वो लोग भेजे थे, तो टोटल 600 वो लोग भेजे और ये लोग 600 अपना ही भेज दिया वहाँ पे. तो यही मोटिव था इनके 600 मेंबर्स को भेजने के पीछे, ताकि जो मेजोरिटी है, जो इनका जो ग्रीवेंसेस है, इनका जो डिमांड्स है, वो ही मेजोरिटी ऑफ पीपल वोट में दे एंड उसी को पास किया जाए. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. जो सारे members गए हैं, सब लोग एक एक वोट देंगे. And this was one of the democratic principles put forward by philosophers of that time, like Rousseau in his book The Social Contract. उसमें रूसो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे उस टाइम के, उन्होंने अपना बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस टाइप का जो डेमोक्रेटिक राइट है, वोटिंग राइट है, उसके बारे में लिखा था, जो हर नागरिक एक एक वोट देंगे और उसके बेसिस पे वो वोटिंग काउंट होगा और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा. तो सबका राइट्स होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा उनमें सबका राइट्स, इक्वल राइट्स होंगे, सब अपना अपना ओपिनियन पोल के थ्रू उसमें सबमिट करेंगे. When the king rejected this idea. This proposal was rejected by the king and the members of the third estate walked out of the assembly in protest. जैसे ही इसका विरोध किया किंग ने, तो जितने भी 600 मेंबर्स गए थे थर्ड स्टेट के, सब लोग प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली हॉल से बाहर चले आए. मतलब जो जो असेंबली बुलाया गया स्टेट जनरल का, वो असेंबली पोस्टपोन हो गया, उसमें पास नहीं कर पाए कोई भी रूल राजा. एंड यहीं से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखिए जो लास्ट इसके बाद, the representatives of the third estate viewed themselves as spokesmen. मतलब उनके जो बात बोलने के लिए आगे गए थे, उनको स्पोक्समैन कहते हैं. स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, पूरे नेशन की तरफ से, पूरे फ्रेंच नेशन की तरफ से वो लोग गए थे पूरे नेशन की बात रखने के लिए एज अ स्पोक्समैन एंड स्पोक्सपर्सन. ऑन 20th जून, 5th मई को ये बुलाया गया था असेंबली, 5th मई 1789 को बुलाया गया था. एंड 20th जून ये सब लोग असेंबल हुए इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल. उसके इंडोर में एक टेनिस कोर्ट था, उसके ग्राउंड में सब लोग एकत्रित हुए 20 जून को. कौन से? ये 600 मेंबर्स. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स द नेशनल असेंबली एंड शोर, SWR शोर, स्वेयर शोर सोन, मतलब वो शपथ लिए वहाँ पे, नॉट टू डिस्पर्स, वहाँ से जाएंगे नहीं हम, till they had drafted the constitution for France that would limit the powers of the monarch. monarch का जो पावर है, ये जो उनका एक चेटिया, जो इनका जो तानाशाही है उनका,
जो वन मैन वन लॉ है, ये जो रूल है, ये जो सुप्रीम पावर है, ये जो सोवरेनिटी है, ये उनसे छीन लेंगे। जब तक नहीं छीन पाएंगे तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं। 20 जून को जाके ये शपथ लिया इन लोगों ने। दे वर लेड बाई मिराबिव एंड एबेसी। उसके बाद जो है फ्यूडल सिस्टम को डिमोलिश करने के लिए ये सारे एकत्रित हुए वहाँ पे, एंड द रिवोल्यूशन स्टार्टेड। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, रेबेल, वो स्टार्ट हुआ। Now let us study what it is given in our 10th standard book. So in 1789, under the rule of absolute monarch, full-fledged terrestrial state था उस टाइम पे। Political and constitutional changes that came in wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to body of French citizen। जो sovereignty, जो supreme power था देश को रूल करने का, वो monarchy से French citizen के पास चला गया through French Revolution। The revolution proclaimed, declare किया, that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create the sense of collectiveness, collective identity, collectiveness amongst the French people। La patrie and les citoyens, la patrie and les citoyens। La patrie means the fatherland, the nation is our is like our fatherland। पूरा देश जो है हमारा पितृ समतुल्य है, पिता की तरह है। एंड ले सिटोइन मीन्स द सिटीजन्स आर ऑल इन वन इन द कंट्री। सो ला पैट्री एंड ले सिटीजन का नारा लगाना स्टार्ट हो गया। इट वॉज एम्फसाइज्ड द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इट वॉज द सेकेंड आउटकम ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। मतलब सबका समान अधिकार होगा। अगर टैक्स पे करना है तो जैसे थर्ड स्टेट के पीपल पे कर रहे हैं, वैसे क्लार्जी और नोबेलिटी, नोबल पीपल जो है उनको भी टैक्स पे करना है देश के तरक्की के लिए। सो सबका समान अधिकार, वो लोग अलग से कोई टैक्सेस इम्पोज नहीं कर पाएंगे। जो टैक्सेस है वो इक्वल टैक्सेस होगा, सबके ऊपर लागू होगा। एंड सर्फडम जो है उनको टोटली एबोलिश कर दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटीज वेयर देयर, उसको भी डेमोलिश कर दिया जाएगा। एंड जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ये फ्रेंच रिवोल्यूशन का आउटकम है। न्यू फ्रेंच फ्लैग ऑफ ट्राई कलर, फ्रेंच फ्लैग पहले जो हुआ करता था मोनार्क का उसमें तस्वीर होगा, तो उसको हटा के न्यू फ्रेंच फ्लैग ऑफ ट्राई कलर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था उसको हटा के न्यू फ्रेंच फ्लैग ऑफ ट्राई कलर। ट्राई कलर फ्लैग, हमारे इंडिया में भी ट्राई कलर फ्लैग है, वैसे ही ट्राई कलर का एक वहाँ पे सब ये जो यूनाइटेड नेशंस, ये जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, इसका एक आउटकम हम कह सकते हैं। ट्राई कलर का फ्लैग, जो फोटोग्राफ हमने देखा था फेडरिक सूरो के, उसमें भी सब ट्राई कलर फ्लैग थे। तो ये ट्राई कलर, न्यू ट्राई कलर फ्लैग was introduced। The State General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। National Assembly नाम दे दिया गया। ये National Assembly स्टार्ट हुआ 20 जून से। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, न्यू राष्ट्रगीत बनाया गया। न्यू हाइम्स मतलब यहाँ पे राष्ट्रगीत को इंडिकेट किया जा रहा है। ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड, नया ओथ लिया गया, जो प्रॉमिसेस लिया गया। एंड मार्टर्स जो लेजेंडरी पर्सन्स थे, जो देश के लिए काम किया था, कुछ जो सब सिविक बॉडी में बहुत पॉपुलर थे, उन लोगों को कॉमेमोरेटेड, मतलब मार्टर्स जो है जो देश के लिए अपना जीवन दे दिए थे, या फिर कुछ स्ट्रगल कुछ सहे थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा, उनको कॉमेमोरेटेड किया गया, उनको आइडियल बनाया गया। सब पब्लिक के सामने उनको उनके जो कहानी है वो कहा गया। सो दैट इज़ डन ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम were introduced, मतलब एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा जो सेंट्रलाइज्ड होगा, उसमें
सारे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह वो जो है वो अगर होगा तो सेम होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा बिल्कुल भी। एंड वेट्स एंड मेजर्स जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, एक जगह पे वेट्स एंड मेजर का कुछ और मतलब था, दूसरी जगह पे वेट्स एंड मेजर का कुछ और मतलब था। यहाँ पे 1 किलो का मतलब जो है दूसरे स्टेट में दूसरे जगह पे 1 किलो का मतलब दूसरा था। तो ये ऐसा नहीं होगा, सब जगह पे सेम वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। वेट्स एंड मेजर्स वॉज एडप्टेड, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर एडप्टेड, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जो अलग अलग डायलेक्ट्स था वो डिस्करेज किया गया। एंड वन लैंग्वेज वॉज एडप्टेड, दैट इज द फ्रेंच लैंग्वेज विच वॉज बीन स्पोकन and written in Paris. Paris was the central is the capital of France. तो वहाँ पे जो लैंग्वेज था फ्रेंच लैंग्वेज जो वहाँ पे लिखा जाता था और बोला जाता था उसको ही नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe. तो अब फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरीज थे वो क्लेम करने लगे कि पूरे यूरोप के जो कॉमन पीपल हैं, सिटीजन्स हैं, उन सबको लिबर्टी दिया जाएगा, उन सब के लिए फ्रीडम लाया जाएगा। फ्रेंच रिवोल्यूशन इज जस्ट द माइलस्टोन ऑफ दैट। फ्रॉम डेस्पोटिज्म मीन्स ये जो वन रूलर है जो कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रूएल भी थे एंड निष्ठुर हुआ करता था, और जो रूल करते थे उनका ही वन मैन वन लॉ, ये जो रूल था, सोवेरेंटी जो था उनके पास, जो सुप्रीम पावर था रूल करने का, इसको डेस्पोटिज्म कहते हैं, उसको डिमोलिश किया जाएगा। नेपोटिज्म इज वन मोर थिंग विच वाज बीइंग डेमोलिश्ड ड्यूरिंग दिस फ्रेंच रिवोल्यूशन। नेपोटिज्म का मतलब ये बाई बार्थ जो प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे थे क्लार्जी एंड नोबलमेंट्स, नोबेल्टीज, सो वो भी डिस्ट्रॉय किया गया, एबोलिश किया गया उसका। When the news of this event in France, ये जो फ्रांस रिवोल्यूशन का न्यूज़ आई, जब ये न्यूज़ रीच्ड डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French army, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790s. With the outbreak of revolutionary wars, French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो क्या हुआ, ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का जब न्यूज़ गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड क्लास था, वो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो जैकोबिन क्लब को इंट्रोड्यूस किया। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज द इन्वेंशन ऑफ दैट टाइम। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो क्या करते थे, ये एजुकेटेड क्लास होते थे और इनके पास काम वगैरह कुछ ना होने की लिए, या काम अगर करते भी थे तो जो नेशन के लिए जो लॉयर्स होते थे या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करते थे वो भी आते थे ये एजुकेटेड मिडिल क्लास के अंदर। और कुछ मार्चेंट्स होते थे जो अपना हैंडमेड प्रोडक्ट्स, जो ये क्लार्जी और नोवेल्टीज़ होते थे उनको सेल करते थे, या फिर बाहर ओवरसीज़ या फिर देश के बाहर बिजनेस करते थे, सेल से एक्सपोर्ट करते थे। तो ये थे, ऐसे वो लोग अपना रेवेन्यू उठाते थे, अपना पैसे कमाते थे। तो इनको एजुकेटेड मिडिल क्लास कहा जाता था, एंड इट वाज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। तो न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास दे वर कॉल्ड। दिस इज़ द कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना जो हुआ था उसमें ये वापस ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का जितने भी आउटकम्स था इन सबको कंडेम किया गया। कंजर्वेटिव्स दे केम इनटू पावर, एंड लिबर्टी और लिबर्टी की बात करने वाले जो लिबरलिज्म आइडिया जो रखने वाले थे, उनको वो क्रिमिनल करार दिया गया और उनके लिए जीना मुश्किल हो गया। कंजर्वेटिव्स वापस पावर में आ गए, मोनार्किकल जो एग्जिस्टेंस है गवर्नमेंट का वो वापस लाया गया। तो उस टाइम पे ये जो डिफरेंट स्टेट्स में बांट गए टोटल यूरोप, उसका ये मैप है। तो वियना दैट वी विल come to know later on. First let us complete this.
फ्रेंच रिवोल्यूशन. सो विद इन द वाइड स्वैथ का मतलब बहुत बड़ा लैंड, विद इन द वाइड स्वैथ्स ऑफ टेरिटरी दैट केम. अच्छा, वो जो जैकोबिन क्लब बना, उनका ये काम था कि ये जो फ्रेंच आर्मी है उनके लिए रास्ता क्लियर कर देना, ताकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाए और अपना जो जो है रिवोल्यूशनरी आइडिया वहाँ पे लेके जाए और देश को कॉन्कर करे, जीते और सबको फ्री करे, लिबर्टी दे. तो इसके लिए तो वो एक के बाद एक ऐसे कंट्री जीतते गए. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, लास्ट पैराग्राफ के लास्ट सेकंड थर्ड लास्ट लाइन, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s, ये सब वो लोग जीत गए और रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करते गए वहाँ पे. Then within the widespread of swath of territory, they came under this his control. किनके कंट्रोल में आया? फ्रेंच आर्मी के कंट्रोल में आया. नेपोलियन बोनापार्ट was a very renowned face at that time. उनके लीडरशिप में ही ये फ्रेंच आर्मी जो है ये सब जीतते गए. नेपोलियन बोनापार्ट, NAPOLEON, Napoleon set about introducing many of the reforms that he held already introduced in France. फ्रांस में जो रिफॉर्म्स वो लाए थे, जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट, सिविलियन कोड और नेपोलियन कोड कहा जाता था. थ्रू अ रिटर्न ऑफ टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. अब जब यहाँ पे रिवोल्यूशनरी आइडिया तो आए, लेकिन वापस नेपोलियन जो है वो मोनार्किकल जो रूल है वही लेके आए. तो डेमोक्रेसी जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो नए नए आइडियाज़ वो लेके आए, दैट वाज वेरी दोज आइडियाज़ वेर वेरी सिटीजन फेवरेबल आइडियाज़. तो इसलिए लोग उनके आइडियाज़ को पसंद करने लगे. एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया. ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स in order to make the whole system more rational and efficient. Rational means logical बनाना, लॉजिकल वे में डिसीजन लेना, इमोशन के ऊपर डिसीजन ना लेना, दैट इज कॉल्ड रैशनल. एंड एफिशिएंट मतलब जो सबके काम आए, ऐसे ऐसे रियल सिचुएशन को उन्होंने कुछ यूटोपियन डिस्कशन नहीं किया. उन्होंने सब कुछ जो किया जो पॉसिबल हो सकता था, ऐसे इफेक्टिव चीज़ें वो लाए. द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, did away with all privileges based on birth. जो ये बाई बर्थ प्रिविलेजेस वो enjoy कर रहे थे, उसको पूरा एबोलिश किया गया. did away with मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया. established equality before the law and secure the right to property. सबके पास प्रॉपर्टी का अपना राइट होगा. ये जो सरकार अपने हिसाब से प्रॉपर्टी एनेक्स कर रहे थे उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया. एनेक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी ख़त्म कर दिया. दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. जो फ्रेंच कंट्रोल के अंदर जो रीजन आए, डिफरेंट कंट्रीज आए, वहाँ पे भी ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया गया. वहाँ पे भी ये सब चालू किया गया. द डच रिपब्लिक, द स्विट्जरलैंड, द इटली, द जर्मनी, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system over there, freed peasants from serfdom and manorial dues. जो अभी बताया serfdom कैसा था और manorial dues था, जो बेसिकली feudal dues होते थे, वो सबको ख़त्म कर दिया गया. In the towns to guild restrictions were removed. guild restriction मतलब जो trade and मर्चेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस था उसको ख़त्म कर दिया गया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेर इम्प्रूव्ड. जो टोल टैक्सेस हुआ करता था, कस्टम ड्यूटीज़ हुआ करता था, वो सब कुछ हटा दिया गया. पेजेंट, आर्टिजन्स, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new found freedom. Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods. तो उनके जो बिजनेस है उसमें अल्टीमेटली इसमें फ़ायदा मिलेगा, ये वो लोग रियलाइज़ किए. एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो चीज़ें बेसिकली बिजनेसमैन लेके जा रहे थे बिजनेस करने के लिए, और कैपिटल मतलब जो उनके धनराशि था, पैसे थे उनके पास, वो डिफरेंट कस्टम ड्यूटीज़ देना पड़ रहा था, लेकिन वो अब एबोलिश करने की वजह से उनको फ़ायदा हुआ. हाउएवर, इन द एरियाज कॉन्कर्ड
The restrictions of local populations to French rule were mixed. The reaction, the reaction, the reaction of local populations to French rule were mixed. उनका जो reaction था फ्रेंच रूलर के ऊपर और फ्रेंच रूल के ऊपर, जहाँ जहाँ पे फ्रांस ने अपना किंगडम बनाया था, जहाँ जहाँ पे वो लोग अपना जीता था, वो नेपोलियन जिस जगहों को, वहाँ पे जो ये फ्रेंच रूल है इसके ऊपर मिक्स्ड रिएक्शंस था जनता का. कुछ लोग कहते थे ये अच्छा है, कुछ लोग कहते थे ये बुरा है. क्यों? इन मेनी प्लेसेस as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. Harbingers of liberty ये एक यहाँ पे एक मेटाफोर यूज़ किया गया. हर्बिंजर ऑफ लिबर्टी के मतलब है जो लिबर्टी लेके आए उनके पास, इनको कहते हैं हर्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी. मतलब ये आए और इनके पीछे पीछे लिबर्टी आए, तो दैट इज शोन हर्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी. बट इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी का मतलब है अनफ्रेंडली और डिसलाइक. तो जो इनिशियल एंथुसियाज्म था इनका, जैकब इनकलाब बनाना, फ्रेंच आर्मी को वेलकम करना और फ्रेंच आर्मी को हेल्प करना टेरिटरी जीतने में, वो एंथुसियाज्म कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता गया, हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया, अनफ्रेंडली में, डिसलाइक में कन्वर्ट हो गया. व्हाई? एज इट बिकेम क्लियर टू द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम. जो पॉलिटिकल फ्रीडम उनको मिल रहा था उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हुआ था वो हैंड इन हैंड नहीं जा रहा था. क्यों? क्योंकि ये जो लार्ज आर्मी है नेपोलियन का, इनको फेड करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए नेपोलियन को भी टैक्सेस का इम्प्लीमेंट करना, इम्पोज करना पड़ा वहाँ पे. जहाँ अपने देश में तो उन्होंने टैक्स नहीं इम्पोज किया, लेकिन जहाँ जहाँ पे उन्होंने कॉन्कर किया वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस, वहाँ के जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर दिया टू मेंटेन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दिस लार्ज आर्मी. इंक्रीज टैक्सेशन, देखिए इंक्रीज टैक्सेशन. सेंसरशिप, अब राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको कहते हैं सेंसरशिप, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया. फोर्स्ड conscription into French armies required to conquer the rest of Europe. अब फोर्स कॉन्क्रिशन का मतलब है फ्रेंच आर्मी में जब जब ज़रूरत पड़ेगा वहाँ के, जहाँ जहाँ पे कॉन्कर किया वहाँ के लोगों को शामिल कर दिया जा रहा था टू कंकर डिफरेंट प्लेसेस. मतलब जहाँ जहाँ पे और आगे कुछ फ्रेंच आर्मी गए और साथ में वहाँ का जो लोकल पब्लिक है उनको भी शामिल कर दिया गया फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती, फोर्स्ड इन कॉन्क्रिप्शन करके जीतने के लिए, आगे की और भी राष्ट्र और भी स्टेट्स जीतने के लिए. तो ऑल सीम्ड टू आउटवेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो लाए गए नेपोलियन के द्वारा वो पीपल उतना उनको अच्छा नहीं माने. सो ऑल राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस lesson. Now let us see a few more. Let us see the summary. Central idea was three central ideas was there in that we can understand from French Revolution. One is liberty, liberty of freedom, freedom to common let me close this. Okay, so liberty, this liberty of freedom of common citizens through the political and constitutional changes that leading to the transfer of sovereignty, that is power of rule, supreme power of rule, that was transformed from monarchy to the body of active citizens of France. Second is equality before the law. एंड ऑफ डेस्पोटिज्म मतलब ये वन रूलर एंड वन लॉ, ये ख़त्म कर दिया गया. नेपोटिज्म जो बाई बार्थ प्रिविलेजेस था वो ख़त्म कर दिया गया. सर्फडम जो मैनोरियल ड्यूज था, जो आपका फ्यूडल ड्यूज था, वो सब चीज़ें ख़त्म कर दिया गया. उनको जो काम करना पड़ता था क्लार्जीज के एंड नोबलिटीज़ के घर पे या उनके लैंड पे, वो ख़त्म कर दिया गया. प्लेबिसिट जो वोटिंग सिस्टम लाया गया.
सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, वेट्स एंड मेजर्स जो था वो यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया, एबोलिशमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मींस शेयरिंग कॉमन आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट, ब्रदरहुड, लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया। ये सब चीज़ें, दीज आर द आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब कुछ keywords or glossaries that let us read. Commemorated, to remind people of an important person, remind people of an important person or object from the past with a special action. और ऑब्जेक्ट मतलब जो अच्छे अच्छे लोग थे, उनके जो काम था उसको सब पब्लिक के सामने लाया गया, उनको याद किया गया। रिवोल्यूशनरीज जो रिवोल्यूशन चाहते थे, कंजर्वेटिव जो रिवोल्यूशन नहीं चाहते थे। कंजर्वेटिज्म एन आइडिया दैट कंजर्वेटिव्स होल्ड्स। डेस्पोटिज्म मतलब रूल ऑफ डेस्पोट, रूलर का रूल होता था जो, उसको डेस्पोटिज्म कहते हैं, दैट इज अनलिमिटेड पावर एंड ऑफन अनफेयर एंड क्रूअल। स्वैत मतलब लार्ज लैंड, रैशनल मतलब बेस्ड ऑन रीजन एंड rather than emotions. Serfdom, the system by which serfs worked on the land. ठीक है, serfs the peasants who used to work on the lands of other and had to obey the landowner. Manorial dues जो है वो फ्यूडल ड्यूज है। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था वो डेमोलिश किया गया, रिमूव कर दिया गया था फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद। हॉस्टिलिटी मतलब अनफ्रेंडली और नॉट लाइकिंग। हर्बिंजर, अ पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस और सिग्नल्स द अप्रोच ऑफ अनदर। हर्बिंजर ऑफ लिबर्टी मतलब हर्बिंजर मतलब वो पर्सन कौन था, फ्रेंच आर्मी थे जो लिबर्टी को लेके आए थे। डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब है पर्सन बाय अ ग्रुप ऑफ people chosen by a group of people to speak, to vote, etc. यहाँ पे थोड़ा सा delegates में person chosen by a group of people to speak or vote for them, etc. Resplendent, palace of Versailles जो था, having very bright and beautiful appearance, prosperous, rich and successful. यहाँ पे रिच का मतलब थर्ड रैंक के जो पीपल थे उनके हिसाब से रिच थे, नॉट एज रिच एज द मोनार्क्स। वर्साइल, द पैलेस ऑफ वर्साइल वाज द प्रिंसिपल royal residence of France from 1682 to until the start of French Revolution in 1789. उसके बाद the palace would never again be a royal residence, उसके बाद कभी भी ये royal residence नहीं बना। Artisans, workers in a skilled trade that involve making things by hand such as craftswomen, mechanics, technicians, etc. etc. Grievance था, इसका मतलब है complaint that one has been treated unfairly. रूसो कौन थे, जेन जैक्स रूसो, he was a French philosopher of that time, very renowned French philosopher. Soar is the first form of swear, soar इसका मतलब taking oath. Liberty का मतलब freedom, the freedom to live as per your wish from social perspective or social point of view. Liberty means the freedom to practice any political or religious belief of one's own choice. Fraternity, sharing a common interest, brotherhood, solidarity का मतलब है एक साथ होकर रहना. So this is by this we have come to an end of this lecture, and in the next lecture we will take up a few questions from whatever we have just studied. All right, so see you in the next